While her journey from the frozen plains of Siberia to the summit of women's tennis has touched the hearts of tennis fans, for the youngster herself there appears to be no room for sentiment. She didn't get emotional anywhere. She was not sentiment. She was mentally tough, and the straight looks and the answers she gives when asked about her ambition make it imply clear that she considers the sacrifices were worth it. I am very competitive. I work hard at what I do. It's my job. This is her mantra for success. Here arises a question: what is the mantra for success for Maria Sharapova? What is the mantra of success for her? Hard work and sacrifice. Hard work and sacrifice. That was the mantra for her success. Though Maria Sharapova speaks with a pronounced American accent, when she pronounces any word, any sentence, then American accent goes there. For example, if you speak, then Haryanvi accent, local language accent goes on. In the same way, because in the teenage, she had gone to US at the age of 9, and for learning any language, that is the very age 4-5 years to 13-14 years. Okay? In the mean age, she was there in US, so when she pronounced anything, her accent was US. Okay? But she says that by blood I am completely Russian. I am completely Siberian because I have the citizenship of Siberia. And at last she says that if I am included for the Olympics, then I will only play by the side of from the side of Siberia or Russia. I am the representative of my own country, Russia. I will not play from US side. मैं यूएस की तरफ से नहीं खेलूँगी. अगर मैं ओलंपिक में खेली, अगर मेरे को ओलंपिक्स में शामिल किया गया, तो मैं अपने ही कंट्री को यानी रशिया को ही रिप्रेजेंट करूँगी. बिकॉज बाई ब्लड आई एम कम्प्लीटली Siberian, I am completely Russian. Is that clear? Like any number of teenage sensations, because here you get the point. Teenage sensations, because in teenage, you are in teenage now. You all girls and boys are in teenage, so you have so much sensations. She was also in teenage, so being a teenage, she was also having sensations and so much hobbies. Maria Sharapova lists fashion, singing, dancing. These were her hobbies: fashion, singing, dancing, and loves reading novels of Arthur Conan. Such type of hobbies she had, and her fondness for sophisticated evening gowns appears at odds with her love of pancakes with chocolate spread and fizzy orange drinks. ये चीज़ें वो खाना पसंद करती थी: fizzy orange drinks and chocolate spread pancakes. What type of pancakes she liked? She liked what? Pancakes with chocolate spread and fizzy orange drinks. Maria Sharapova can't be pigeonholed or categorized. Her talent, unwavering desire to succeed, and readiness to sacrifice have lifted her to the top of the world. Only her sacrifice. What type of sacrifice she did? किस टाइप की sacrifices उसने की थी? किस टाइप की की थी उसने? सबसे पहली बात तो 9 ईयर का बच्चा कितना होता है? 9 ईयर का बच्चा हार्डली 4th क्लास में होता है ना? 4th, 3rd, 4th और 5th. ठीक है. अगर आप बहुत जल्दी अर्ली एज में ही पढ़ना स्टार्ट कर देते हो तो, क्योंकि 3 ईयर का बच्चा किस में जाता है? नर्सरी में जाता है.
4 ईयर का बच्चा केजी में जाता है, LKG UKG, यानी 6 ईयर का जब बच्चा होता है तब वो फर्स्ट में जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, 6, 7, 8, 9, तो हार्डली शी वॉज इन 4th क्लास, ठीक है। तो 4th क्लास में होने की वजह से जो है ना शी वॉज वेरी लिटिल गर्ल एंड शी सेक्रीफाइस द लव ऑफ हर मदर बिकॉज शी हैड बीन अवे फ्रॉम हर मदर्स लव, ठीक है। एक सेक्रीफाइस वहाँ भी किया कि घर वालों के प्यार से दूर रही। दूसरा सेक्रीफाइस कहाँ किया कि जहाँ वो रूम में रहती थी उस रूम में जो उसकी एल्डर्स थी वो उसको रात को 11 बजे जब वो रूम में एंटर करती थी तो उसको सोते हुए जगाती थी और वो उसको कहती थी कि वो जो भी रूम के जैसे रूम क्लीनिंग है, रूम टाइडी करना है, तो उसके लिए उसको बोलती थी और उसको करना पड़ता था। लेकिन उसके लिए कभी इसने वो एक्सक्यूज़ नहीं बनाया कि मेरा यहाँ मन नहीं लगता है या ये मेरे जो एल्डर्स हैं, मेरे जो सीनियर्स हैं, ये मेरे से काम करवाते हैं। उस चीज़ के लिए उसने कभी भी एक्सक्यूज़ नहीं किया। वाई? क्यों नहीं किया उसने एक्सक्यूज़? क्योंकि उसका एम सिर्फ एक ही था कि वर्ल्ड नंबर 1 बनना, ठीक है। आगे देखिए, टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड फ्यू वुड ग्रज हर riches she is now reaping. She is now reaping का मतलब क्या है कि as you sow so shall you reap. आप जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे, ठीक है। तो अब उस चीज़ को जैसा उसने मेहनत की थी उस चीज़ को वो काट रही है, उस चीज़ को वो गेन कर रही है, ठीक है। समझ आया ना मैं जो कहना चाह रही हूँ कि एज यू सो, आप जैसा बोओगे, सो शैल यू रीप, आप वैसा ही काटोगे। रीप का मतलब होता है फसल का काटना, जो आपने बोई है उसका काटना, रीप का मतलब होता है, ठीक है, हार्वेस्टिंग करना। तो यहाँ पर वो कहती है कि जैसे मैंने सेक्रीफाई किया था, मैंने जो हार्डवर्क किया था, मेरी जो कॉम्पिटिटिव नेचर थी, ठीक है, कॉम्पिटिटिव जो मेरी नेचर थी, मैं जो हार्डवर्क किया था, जो मैंने मेंटल टफनेस उसकी कहाँ से आई थी? मेंटल टफनेस भी उसकी वहीं से आई थी क्योंकि वहाँ पर वो इमोशनल नहीं हुई। जो उसके एल्डर्स, जो उसकी सीनियर जो ना उसको परेशान करती थी कि तुम्हें अभी रात को 11 बजे रूम साफ करना है, ठीक है, और भी काम करने हैं, वो उनसे जो छोटी बच्ची के से सब वो काम करवाती थी, ठीक है। तो वहाँ से वो हार्डवर्किंग हो गई, दूसरा क्या हो गया, मेंटली टफ हो गई। अगर वो सेंटीमेंट में आ जाती, वहाँ पर सेंटीमेंटल हो जाती, तो वो घर भाग जाती कि मुझे यहाँ नहीं रहना, मेरा मन नहीं लगता, ये सीनियर्स में से काम करवाते हैं। लेकिन उसकी बजाय उसने क्या किया, अपना जो एम था, अपना टारगेट था, वो सस्टेन रखा और उसने अपने आप को मेंटली टफ बना लिया, ठीक है। तो ये जो सेक्रीफाइस था, उसने जो कहती थी जो भी मैंने सेक्रीफाइस किया था उसी का मैं अभी काट रही हूँ, मतलब मैं उसको गेन कर रही हूँ, उसका रिजल्ट जो ना, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो मैं गेन कर रही हूँ। दिस इज व्हाट शी हैज़ टू से अबाउट हर मॉनिटरी गेन्स फ्रॉम टेनिस। ऑफ कोर्स मनी इज ए मोटिवेशन, tennis is a business and a sport. Now she says that money is motivation. You know very well that without money there is nothing. How can it be possible? Without money you can gain the first number in any game, because before that you will have to do hard work, you will have to sacrifice something, you will have to गेन कोचिंग फॉर दैट। और कोचिंग के लिए क्या होगा, पैसे लगेंगे, ठीक है। तो कहते हैं कि मनी जो है ना वो मोटिवेशन है। क्लियर? आप सपोज करो, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, आप किसी गेम के लिए जाते हैं बाहर और आपको वहाँ पर यू आर विनर देयर एंड देन यू गेट समथिंग, यू गेट मनी फ्रॉम दैट इंस्टीट्यूट, फ्रॉम दैट अकेडमी, ठीक है, फ्रॉम दैट एनी कोई भी टूर्नामेंट है, वहाँ से आपको एज ए विनर आपको जो है ना पैसा मिलता है। तो क्या होगा, आप अगर अब आप 1 लाख लेके आए हो तो आपके लिए वो क्या होगा, मोटिवेशन कि और मैं जीतूँ। सेकंड टाइम में उसको 1.5 मिलेगा, नेक्स्ट टाइम को 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 मिलेगा, ठीक है, इसके साथ मुझे ये भी मिलेगा। मतलब यहाँ पर उसने बोला कि मनी इज़ मोटिवेशन, कि मनी से क्या है, मोटिवेशन मिलता है अगर तुम हार्ड वर्क करते हो, ठीक है, तुम अच्छा काम करते हो, उसके लिए तुम्हें कोई प्राइज़ नहीं मिलता है। तभी तो कहते हैं प्राइज़ होता है, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, प्राइज़ ही होता है, क्योंकि वो बच्चों को क्या करता है, मोटिवेट करता है। बच्चों को क्या, हमें भी करता है।
अगर हमें कोई अच्छा कहे कि भैया आपने आज अच्छा काम किया तो हमारे को क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। अगर हम आपको ये कहते हैं कि बच्चों आज आपने बहुत अच्छा काम किया है, तो आपको अच्छा लगता है ना, और आपको और भी अच्छा काम करने का मन करता है ना। और एक जहाँ देखो दोनों चीज़ है, सच्चाई और झूठ। अगर आपने काम अच्छा किया ही नहीं है और फिर मैं आपको ये बोलूँ कि नहीं आपने तो बहुत अच्छा काम किया, तो फिर आप क्या सोचोगे, मैंने तो काम अच्छा किया ही नहीं, फिर भी मैडम कह रही हैं कि अच्छा काम किया, तो इसका मतलब मेरे को मैडम बेवकूफ़ बना रही है। समझ आया। लेकिन अगर आप अच्छा काम करते हो, फिर मैं आपको नहीं बोलती हूँ कि आप अच्छा काम कर रहे हो, तो फिर आप क्या होगा, डिमोटिवेट हो जाओगे कि मैं तो कितना भी अच्छा काम क्यों ना करूँ, मैडम को तो बोलना ही नहीं है अच्छा काम करते हो। लेकिन मोटिवेशन हर फील्ड में एक एक स्टेप के ऊपर मोटिवेशन जरूरी है। किसी ने अच्छा काम नहीं किया है तो आप ये कह सकते हो कि हाँ आज थोड़ा सा कुछ लूज रह गया, कल मैं और अच्छा करके दिखा देता हूँ। मैं भी ये बोलूँगी आपको कि हाँ कोई बात नहीं, आज आपने नहीं किया कल आप करके दिखा देना, ठीक है। दैट इज कॉल्ड मोटिवेशन। तो कहते हैं कि मनी इज मोटिवेशन, टेनिस इज ए बिजनेस एंड ए स्पोर्ट। हर चीज़ को हम दो तरीके से कर सकते हैं, स्पोर्ट के तरीके से और उसको बिजनेस के तरीके से। अगर आप उसको बिजनेस के तरीके से खेलोगे और कोई भी काम आपको प्रोफेशनली करोगे, प्रोफेशन का मतलब क्या होता है, जिस काम के करने से आपको मनी मिलता है, ठीक है, आपको पैसे मिलते हैं, आपको पगार मिलती है, आपको अर्निंग मिलती है, आपको वेजेस मिलता है, भत्ता मिलता है, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रोफेशन, ठीक है। तो कहती है कि टेनिस इज ए स्पोर्ट्स एंड बिजनेस बोथ। बिजनेस का मतलब क्या है कि अगर आप खेलते हो और आपको वहाँ से पैसे मिलते हैं, दैट इज बिजनेस। एंड स्पोर्ट का मतलब क्या है, वो आपकी हॉबी है, आपको अच्छा लगता है वो खेलना, दैट इज स्पोर्ट, ठीक है। एंड बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू बिकम नंबर 1 इन द वर्ल्ड, दैट इज द ड्रीम दैट केप्ट मी गोइंग, ठीक है। यहां पर क्वेश्चन बनता है, व्हाट डिड शी कीप गोइंग, ठीक है। व्हाट हर ड्रीम टू बिकम नंबर 1 इन द वर्ल्ड केप्ट हर गोइंग ऑन, ठीक है। कि मुझे जो है ना, मुझे वहाँ से मोटिवेशन मिलता रहा कि मैं ये सोचती रही कि मुझे नंबर 1 जब बनना है, मुझे नंबर 1 बनना है, एक जीतना और एक टॉप पे जाना, ठीक है। तो सेकंड नंबर पे है वो भी जीतता है, थर्ड नंबर पे है वो भी जीतता है बेटा, ठीक है, फोर्थ नंबर पे जीतता तो वो भी है, समझ आया। पोजीशन तो वो उसकी भी है, लेकिन एक टॉप पर जाना दैट इज अ डिफरेंट थिंग। उसको सबसे बड़ी बात उसको सस्टेन रखना, दैट इज अ मोर इम्पोर्टेंट। किसी भी टू गेट एनीथिंग इज गुड, बट टू सस्टेन दैट थिंग इज मच हार्ड, वो ज़्यादा मुश्किल है, इज मच डिफिकल्ट। समझ आया, क्लियर, ओके।